in which of the following true periodontal pocket formation cannot occur? Okay, the options here are chronic periodontitis, localized aggressive periodontitis, acute necrotizing ulcerative periodontitis, and prepubertal periodontitis. See, chronic periodontitis, we have mentioned so many times. Chronic periodontitis, true pocket formation, it's there because of the bone loss and the inflammatory reactions which is taking place. Localized aggressive periodontitis is also a type of periodontitis. In that also true periodontal pocket formation is there. Option C is acute necrotizing ulcerative gingivitis. See, in ANUG, in the previous slides also I have explained what is ANUG. In ANUG what happens is it is an acute lesion. Severe necrosis and pseudomembrane formation is there on the gingiva, and the pathognomic feature of that disease, that is ANUG, is the crater-like formations in the interdental papilla. So necrosis of the gingiva totally occurs in ANUG. So where the necrosis is there, true pocket formation cannot be possible. So here the correct option will be option C. That is ANUG. Reason is because of the necrosis of gingiva, and where necrosis is there, pocket formation is not at all possible. Okay, a thin bluish line around the gingival margin is due to absorption of silver, mercury, lead and copper. See, yes, various lines or the tattoos have been found in the gingiva. ये सारे के सारे जो मेटल्स हैं, ये कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी फॉर्म में यूज करते हैं. जैसे कि अमलगम में मोस्टली हमको मर्क्यूरी मिलेगा. अभी फिलहाल ये चीज कम हो गई, लेकिन पहले अमलगम बहुत यूज होता था, एंड मर्क्यूरी इज द मेन थिंग जो कि उसमें यूज होती थी, विच कैन लीड टू अमलगम टैटूज, जिसमें आपको ब्लूइश और ब्राउनिश पिगमेंटेशन आपको जिंजाइवा में देखने को मिलते थे. तो ये सारे के सारे मेटल्स हम या तो मेडिसिन में या फिर हमारे जो रेस्टोरेटिव मटेरियल्स है उनमें यूज होते थे, उसकी वजह से कोई ना कोई रिएक्शन आपको जिंजाइवा में देखने को मिलता था. अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं थिन ब्लूइश लाइन. इट इज ऑलवेज associated with silver. So the correct answer is option A, that is silver. So the next question is, in pathogenesis of periodontal pocket formation, the junctional epithelium detaches from the tooth surface when the relative volume of PMNs, that is the leukocytes, goes above. See how this pocket formation start. This pocket formation start when the junctional epithelium moves down. So this is your junctional epithelium. When it goes down, when it moves down, then this sulcus depth increases beyond 3 millimeter and you call it as a pocket. Okay, and it's been found in various studies, it's been found that when this junctional epithelium detaches, ये junctional epithelium कब detach होना शुरू होती है और नीचे जाना start होती है, it's been found that the lymphocytes volume, जब भी ये lymphocytes more than 60% हो जाएं, मतलब total amount of lymphocytes का volume greater than 60% हो जाए, उसके बाद ये junctional epithelium detach होगी and moves down to form a pocket. Okay, so here the options are 40%, 50, 60 and 80. So the correct answer of this will be C, that is the 60%. The next question is the ideal surgical technique for treatment of inadequate width of attached gingiva. See, what is an attached gingiva? I have already told. This, for example, this is your gingiva, this is your mucogingival junction, okay, and this is your free gingiva. Free gingiva or gingival margin is around 1 to 3 mm around. This will be your free gingiva, 1 to 3 millimeter. फ्री जिंजाइवा, वाइट सेट फ्री जिंजाइवा, बिकॉज यहाँ आप प्रोब डालोगे तो आपका प्रोब जहाँ तक चला जाए, मीन्स इट इज नॉट फॉर्मली अटैच टू द टूथ, दैट्स वाई आपका प्रोब इजीली जा रहा है, दैट इज योर फ्री जिंजाइवा. जहाँ पे फ्री जिंजाइवा या बेस ऑफ द सल्कस आएगा टिल योर म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन, दैट विल बी योर अटैच जिंजाइवा. अब बहुत से केसेस में जैसे कि जिंजाइवल रिसेशन या एबरेंट फ्रेनम अटैचमेंट हो, तो बिकॉज ऑफ दैट ये अटैच जिंजाइवा की विड्थ जो है
ये कम हो जाती है। अब रिसेशन होगा अगर, तो ये जिंजाइवल जो आपका अटैच जिंजाइवा है, इसकी जो नॉर्मल विड्थ होती है वो 2 to 3 मिलीमीटर आप मान के चले। डिफरेंट रीजन में डिफरेंट होती है। पोस्टीरियरली कम होती जाती है 1.3 1.2 मिलीमीटर्स, और एंटीरियरली कंपैरेटिवली ज़्यादा रहती है। अटैच जिंजाइवा की विड्थ होना बहुत ज़रूरी है। वाई? बिकॉज जितनी ये विड्थ होती है उससे इन्फ्लेमेशन उतना डिफिकल्ट होता है रीच होना इनटू द पेरिडोन्शियम, और ये टूथ को स्टेबलाइज करके भी रखता है। वाई? बिकॉज इट इज फर्मली अटैच टू द टूथ। तो आपका जो टूथ स्टेबिलिटी है ये मेंटेन रहती है अटैच जिंजाइवा से। अब डिफरेंट सिचुएशंस जैसे कि जिंजाइवल रिसेशन हुआ या फिर एब्रेंट फ्रेनम अटैचमेंट की वजह से ये विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा आपकी कम हो जाती है। तो अभी अगर हमको उस टूथ की, पर्टिकुलर टूथ की विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा बढ़ानी है, तो देयर इज दिस टेक्निक विच इज नोन एज दी अपाइकली डिस्प्लेस्ड फ्लैप। उसमें आप क्या करते हैं, आप फ्लैप को रेस करते हैं एंड यू डिस्प्लेस इज अपाइकली, क्योंकि अभी अब आपके पास जो जगह बची है जिससे कि जो आपकी अटैच जिंजाइवा है वो बढ़ सकती है, या तो आप अपाइकली डिस्प्लेस कर दें, म्यूको जिंजाइवल जंक्शन के नीचे तक ले आए, या फिर कोरोनली डिस्प्लेस कर दें आप फ्लैप को। ओके, तो दीज आर दी टू सिचुएशन जिससे कि आप जो विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा है वो बढ़ा सकते हैं। अब इधर पे ऑप्शंस में दे हैव गिवन मॉडिफाइड विडमैन फ्लैप विच इज अ टाइप ऑफ टेक्निक टू रिड्यूस द पॉकेट, मतलब आप पॉकेट एलिमिनेशन के लिए उसको यूज करते हैं, विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा बढ़ाने के लिए नहीं। Secondly is apically displaced. Yes, it's been used for the increasing width of attached gingiva. Regular Whitman flap also is a technique for the pocket elimination, so it won't be used. Lateral pedicle flap is basically जहाँ पे आप flap को लेंगे laterally you will shift to another tooth. This is basically used for the recession coverage. So it is a recession coverage technique. So the correct answer of this question will be B, that is the apically displaced flap. Okay, the next question is aberrant frenal attachment that is clinically significant. Clinically significant मतलब कि you can क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मतलब जब आप पेशेंट में देखें तो यू कैन इजीली इवेलुएट कि हाँ इट इज़ अ एब्रेंट फ्रेनम। सी फ्रेनल अटैचमेंट इज बेसिकली, आप फ्रेनम देखेंगे तो फ्रेनम होता क्या है, बेसिकली इट इज़ अ फाइब्रस टिश्यू जो कि आपके लिप को आपके जिंजाइवा से कनेक्ट करता है। ये मैक्सिला में भी होता है, मैंडिबल में भी होता है, एंड इट इज़ ऑफ 4 टाइप: जिंजाइवल, म्यूकोसल, पैपिलरी एंड पैपिला पेनिट्रेटिंग। अगर हम मैक्सिला की बात करें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर जिंजाइवल मार्जिन इन दी मैक्सिला, ठीक है। अब ये जो फ्रेनम है ये एक फाइब्रस टिश्यू है जो कि कनेक्ट हो रहा है आपका जिंजाइवा से टिल योर लिप। ओके, अब म्यूकोसल में इट इज बेसिकली, इसका जो कनेक्शन है ये टिल दी म्यूकोसा तक सीमित रहता है, ठीक है, जिंजाइवा तक नहीं आता है। जिंजाइवल में टिल अटैच जिंजाइवा बेसिकली इट कम्स इन कॉन्टैक्ट। पैपिला में इट कम्स एंड कॉन्टैक्ट टू द पैपिला। पैपिला में ये इंटरडेंटल पैपिला पे भी रुक सकता है, उसके पहले भी रुक सकता है, बट बेसिकली कहाँ पे जाके अटैच होगा, टू द इंटरडेंटल पैपिला। पैपिला पेनिट्रेटिंग, पैपिला पेनिट्रेटिंग मतलब कि पैपिला पे अटैच हुआ और पूरा पीछे तक जाके इट विल अटैच टू योर इंसिसिव पैपिला, मतलब आपका पूरा ऊपर से आएगा, इंटरडेंटल पैपिला को पेनिट्रेट करेगा एंड इट विल पूरा नीचे तक जाएगा इनटू द इंसिसिव पैपिला, दैट इज नोन एज द पैपिला पेनिट्रेटिंग। तो सबसे ज्यादा क्लिनिक, देखिए चारों ही एब्रेंट फ्रेनम के टाइप है, लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे इजीली और क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कौन सा है, दैट इज योर फैन शेप्ड पैपिलरी पेनिट्रेटिंग टाइप, जो कि आप इजीली इवैल्यूएट और देख सकते हैं क्लिनिकली। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज पैपिलरी पेनिट्रेटिंग टाइप ऑफ एब्रेंट फ्रेनम। Okay, local drug delivery agent Arrestin is. So what do you mean by local drug delivery? देखिए लोकल ड्रग डिलीवरी एक तरीके का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। देखिए बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे 4 mm अप टू 5 mm तक का पॉकेट डेप्थ आफ्टर फेज 1 थेरेपी बचता है, ठीक है, और हमें अगर सर्जिकली नहीं जाना है तो नॉन सर्जिकली व्हाट वी कैन डू अलोंग विथ स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग, वी कैन यूज दीज ड्रग डिलीवरी एजेंट्स।
जैसे कि टेट्रासाइक्लिन्स आप बोले तो टेट्रासाइक्लिन्स जो रहते हैं अलोंग विथ एसआरपी वो बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं इन क्रोनिक पेरिडोंटाइटिस केसेस, और बहुत सी स्टडीज में इट्स बीन प्रूव्ड ऑल्सो। अभी लोकल ड्रग डिलीवरी देने से क्या मतलब है कि लोकल ड्रग डिलीवरी में आप ये जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं ये फाइबर के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में, यू जस्ट डायरेक्टली पुट देम इनटू दी सल्कस, आप सीधे इसको पॉकेट में डाल दीजिए, ठीक है, अलोंग विथ स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग। अब सीधे अगर अपन लोकली उसी जगह पे इसको प्लेस कर रहे हैं जहां पे इसका इफेक्ट चाहिए, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है रिलीजिंग ऑफ द ड्रग इंक्रीजेस 2 to 4 फोल्ड टाइम्स। मतलब कि आपने इसको लोकली प्लेस किया, धीरे धीरे ये विथ द टाइम ऑफ 7 days या 4 days, जो भी उस पर्टिकुलर डिलीवरी सिस्टम का टाइम होगा, उस पर्टिकुलर टाइम तक ये लोकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम धीरे धीरे ड्रग को इनटू दी सल्कस रिलीज करता रहेगा और बैक्टीरिया की ग्रोथ फिर से होने नहीं देगा। इसलिए लोकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं। वो सिस्टमिक जो आप अगर देते हैं किसी पेशेंट को, तो जो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, वॉमिटिंग हुआ, हेडेक हुआ, वो सारी की सारी चीजें आपको लोकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में नहीं मिलेंगी। ओके, सो दीज आर नोन एज द लोकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। अब टेट्रासाइक्लिन्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन दी लोकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जैसे कि अरेस्टिन एक टाइप का सिस्टम है जिसमें एक तरीके के माइक्रोस्फीयर्स होते हैं जिसमें 1 मिलीग्राम ऑफ आपका मिनोसाइक्लिन डाला जाता है, और ये जो माइक्रोस्फीयर्स होते हैं ये जब प्लेस करते हैं अपन इनटू दी सल्कस, तो ये 7 days तक ये धीरे धीरे मिनोसाइक्लिन्स को रिलीज करते रहते हैं। इसका कॉन्सेंट्रेशन इज 1 milligram of minocycline. Here they have given the option minocycline, tetracycline, doxycycline and penicillin. Arestin system is having 1 milligram of minocycline, so the correct answer will be A. Okay, next question is chlorhexidine gluconate is used as a mouthwash in a concentration of. देखिए, क्लोरहेक्सिडीन के बारे में हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी बात करी थी। क्लोरहेक्सिडीन इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड। इट हैज अ बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी ऑल्सो एंड अ बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑल्सो। मतलब कि हायर कॉन्सेंट्रेशन में ये बैक्टीरियोसाइडल एक्ट करते हैं, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इनका लो होता है ये बैक्टीरियोस्टैटिक हो जाते हैं, एंड सब्सटेंटिविटी बहुत अच्छी रहती है। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंटिविटी? मीन्स अगर एक बार हमने माउथ वॉश किया क्लोरहेक्सिडीन का, तो इसके जो क्लोरहेक्सिडीन के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर एम्बाइब्स बाय दी ओरल म्यूकोसा टीथ, और धीरे धीरे ये ओरल कैविटी में रिलीज होते रहते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 12 hours. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द गोल्ड स्टैंडर्ड। मतलब इसके जैसा कोई नहीं। इन इंडिया इट्स कम इन 2 concentration, 0.2 एंड 0.12 concentration. माउथ वॉश, देखिए अभी यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, दे हैव आस्क्ड ऑफ माउथ वॉश। क्लोरहेक्सिडीन ऑल्सो कम्स इन अ फॉर्म ऑफ ट्यूब्स, उसमें आपको 0.1% भी मिलेगा, बट द क्वेश्चन हियर इज माउथ वॉश। तो माउथ वॉश में 2% आपको मार्केट में मिलेंगे, 0.2 एंड 0.12। दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर आपके 4 ऑप्शंस में से रहता है, इट इज करेक्ट। सो हियर दे हैव गिवन 0.2%, 2%, 0.5 and 2.5. So the correct answer will be A, that is 0.2. Another is 0.12%. Okay. Interdental cleaning aids they are more efficient than toothbrushes? No. Toothbrush करना जो आपका मैकेनिकल डिब्राइडमेंट है वो आपका प्राइमरी चीज होती है फॉर रिमूवल ऑफ द प्लाक, एंड इट शुड बी डन ट्वाइस अ डे, क्योंकि 12 hours का आपका प्लाक फॉर्मेशन का साइकिल रहता है, तो आपको वो बेसिकली उसको एब्रप्ट करना है, उसे बीच में रोकना है। तो इट इज एडवाइज टू डू अ मैकेनिकल प्लाक कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ टूथब्रश ट्वाइस डेली। ओके, सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। फ्रीक्वेंटली रिजल्ट इन जिंजाइवल रिसेशन, फ्रीक्वेंटली इट्स नॉट द गुड टर्म, क्योंकि ये जिंजाइवल रिसेशन तभी कराता है जब प्रॉपरली टेक्निक से पेशेंट इसको यूज ना करे। ओके, सो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. They are selected depending on the type of embrasure. Yes. See, interdental cleaning aids are the one which are used to clean the interdental region. ये जो रीजन होता है दो टूथ के बीच का, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये ऐसा रीजन है जहाँ पे बैक्टीरिया सबसे इजीली हाइड हो सकते हैं, और स्टार्ट पॉइंट और इनिशिएशन ऑफ जिंजिवाइटिस ऑल्सो स्टार्ट्स विद द
interdental region, because such coal area and the hiding of the microorganisms is very easy in such region. यस अगर हम टूथ ब्रशिंग की बात करें तो टूथ ब्रशिंग इस पूरे रीजन को 100% क्लीन नहीं करता, तो इंटरडेंटल क्लीनिंग एड्स आर ऑलवेज यूज एन एडजंक्ट. एडजंक्ट से मेरा मतलब है कि ब्रशिंग के साथ दिया जाता है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन गलत है. ओके अब ये इसको कैसे देना है. इंटरडेंटल ब्रशेस जो होते हैं वो डिफरेंट साइज में मार्केट में अवेलेबल रहते हैं. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एम्ब्रेजर्स. सी अगर बहुत माइल्ड बोन लॉस है, माइल्ड रिसेशन है, जो आपका इंटरडेंटल एम्ब्रेजर एरिया बहुत ही नैरो है, तो आप जो है उस पे या टाइट कॉन्टैक्ट है तो आप फ्लॉसिंग या फ्लॉस, डेंटल फ्लॉस जिसको बोलते हैं, टाइप 1 एम्ब्रेजर में यू गिव dental floss because it's having a tight contact and very mild bone loss or no bone loss is there. Type 2 embrasures are the embrasures जहाँ पे आपको bone loss बहुत ज़्यादा दिखेगा. ठीक है, mild to moderate दिखेगा, recession is also there. इधर पे आप एडवाइस करेंगे नैरो से ब्रॉड एरियाज के इंटरडेंटल ब्रशेस, दैट इज योर टाइप 2 embrasures. टाइप 3 embrasures are where there is severe bone loss and severe recession, मतलब इंटरडेंटल दोनों दांतों के बीच में आपको काफी बड़ी स्पेस दिखाई देगी. ठीक है, वहां पे आपका वो पतला सा फ्लॉस काम में नहीं आएगा. सो वहां पे हमें ब्रॉड इंटरडेंटल ब्रशेस या यूनिटफ्टेड ब्रशेस वी एडवाइज. सो इंटरडेंटल जो क्लीनिंग एड्स हैं वो सारे के सारे, चाहे डेंटल ब्रश हो, चाहे यूनिटफ्टेड ब्रशेस हो, चाहे इंटरडेंटल ब्रशेस हो, सारे के सारे पेशेंट में कैसा एम्ब्रेजर है, किस टाइप का एम्ब्रेजर है, उसके हिसाब से हम इंटरडेंटल ब्रश रिकमेंड करेंगे. क्वेश्चन कैन कम ऑन दिस ऑल्सो कि भाई डेंटल फ्लॉस जो है वो किस टाइप के एम्ब्रेजर में आपको देखने को मिलेगा. देयर यू मार्क टाइप 1 एम्ब्रेजर. Okay, here they have asked overall interdental cleaning aids. So yes, they are selected depending on the type of embrasure. Require high manual dexterity, ऐसा नहीं है. Manual dexterity से मतलब है कि कितना easily patient उसको कर सकता है. इसके लिए कोई भी manual dexterity की जरूरत नहीं. It is very easy to learn. Yes, जो mentally ill patients हैं उनमें थोड़ा difficult होता है, but yes, it doesn't require high manual dexterity. So the correct answer is option C. Okay, next question is property of P. gingivalis or Porphyromonas gingivalis involved in evasion of host defense. मतलब कि P. gingivalis में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है या ऐसा कौन सा एंजाइम होता है उसमें जिससे कि वो जो होस्ट के जो डिफेंस है, मैकेनिज्म है, मान लीजिए एंटीबॉडीज होस्ट बना रहा है उसके अगेंस्ट, उससे वो बच के भाग जाए. इवेश मतलब उसको या तो खत्म कर दे या उससे बच लें. So they have given 4 options here. The first option, immunoglobulin A and immunoglobulin G degrading proteases. See, immunoglobulin A and immunoglobulin G जो रहते हैं वो सबसे ज़्यादा बनते हैं against these microorganisms. अब ये जो P. gingivalis है, A एक तरीके का protease निकालता है, which is a type of enzymes. अब प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम जिससे ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए और इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो कि हमारे अंदर एंटीबॉडी है जो कि होस्ट निकालता है टू किल दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ओनली, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंड इम्यूनोग्लोबुलिन जी डिग्रेडिंग प्रोटीएजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेयर साइड किट फॉर बाना टेस्ट. इन द प्रीवियस स्लाइड आई हैव टोल्ड कि भाई जो रेड कॉम्प्लेक्स है P. gingivalis, Treponema, Denticola एंड Tenerella forsythia, ये पूरे के पूरे रेड कॉम्प्लेक्स हैं और ये एक तरीके का एंजाइम रिलीज करते हैं, दैट इज ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम. ओके, और ये ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम जो होता है वो फर्दर डिग्रेडेशन ऑफ वेरियस कोलेजन या फिर हमारा बोन रिजॉर्प्शन स्टार्ट कराता है. ओके, सो अब इसको अगर हमको इवेल्युएट करना है चेयर साइड तो देयर इज अ किट दैट इज नोन एज पेरियोस्कैन. उसमें क्या रहता है कि उसमें दिस बाना टेस्ट इज बेसिकली इट इज अ बीटा बेंजोइल अमीन नेफ्थाइल अमाइड. ठीक है, ये बाना का फुल नेम है. ठीक है, देयर इज अ किट, एक किट होता है जिसमें ये एंजाइम ऑलरेडी प्लेस होता है. ओके, अभी चेयर साइड मतलब क्या होता है? चेयर साइड मतलब पेशेंट आपके बगल में बैठा है और वहीं के वहीं आपने सैंपल निकाला और आपने टेस्ट किया और आपको रिजल्ट मिल गया. ठीक है, पेरियोस्कैन इज दी वन.
अभी अगर हमारे ये जो 3 स्पेशल बैक्टीरियाज हैं जो कि सबसे कॉमनली आपको क्रोनिक पेरिडोंटाइटिस के पेशेंट्स में देखने को मिलेंगे, एंड दे रिलीजेस दिस ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम। अगर हमको ये देखना है कि ये पेशेंट जो है सीवियर पेरिडोंटाइटिस का, इट इज़ अ पेशेंट ऑफ क्रोनिक पेरिडोंटाइटिस, और वेदर दिस पेशेंट इज हैविंग दीज 3 बैक्टीरियाज, वी कैन यूज दिस टेस्ट। इसमें कुछ नहीं रहता, इसमें ये किट रहती है, ये एंजाइम जो होता है बाना इसमें कोटेड रहता है। अगर हम वो जो प्लाक सैंपल है उसको इस किट में डालेंगे तो ये जो बाना जो है, जो एंजाइम है, इट हैज़ दिस कैपेसिटी टू बेसिकली तोड़ने की। हम बात करें ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम्स जो होते हैं, ये इस जो बाना को होता है इसको तोड़ने की कैपेसिटी रखता है, दैट इज बेंजोइल अमीन नेप्थाइल अमाइड। अगर हमने जैसे ही प्लाक सैंपल हमने डाला और अगर उस प्लाक सैंपल में पी जिंजिवालिस या ट्रिपोनिमा डेंटिकोला जैसे बैक्टीरियाज हैं जिसमें ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम है, और वो ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम जैसे ही बाना में अपन ने डाला और वो टूटता है, वैसे ही विद इन 2 to 3 minutes कलर चेंज appears on that particular kit, okay, and thus it's confirmed, yes, this sample or this plaque sample is having these red complex bacteria, and the name given to that kit is PerioScan. So the correct answer is option A, that is PerioScan.